Good morning, children. Children, in our chapter, Anita and the honeybees. Till yesterday, we have seen Anita's struggle regarding education, and after that, how she learnt beekeeping course from government, and even in that also, what problems she has faced. Today, we will focus on the further part of the chapter. Now, see what is asked here. What do people in your area put on the part of the body where the bee has stung? Yesterday I told you, while doing this work, Anita had faced the problems that many bees had stung her on her hand, on her face, and actually it was very troublesome. She faced that problem also, and that part get swollen. Okay, and on that it is asked here that in our area, what people apply on the part where the honey bee has stung. जहाँ पर हनी बी हमको काटती है वहां पर हमारे एरिया के लोग क्या क्या अप्लाई करते हैं उतने पार्ट पर. एंड हियर इज द आंसर. People in my area usually put lime, apply onion, vinegar, toothpaste, baking soda, honey or ice on the part of the body where the bee has stung. ये यूजुअली इसके लिए होता है बेटा कि जो आफ्टर हनी बी के स्टंग के काटने के बाद में जो बॉडी पार्ट सोलन होता है ना, तो अगर ये चीजें हम अप्लाई करते हैं तो पार्ट सोलन नहीं होता है और थोड़ा सा जो जलन होती है तो वो जलन भी नहीं होती है. इसके लिए चीजें हम अप्लाई कर सकते हैं. ओके, और ये होम रेमेडीज है. इसके लिए पूछा है कि पीपल क्या अप्लाई करते हैं, ये नहीं पूछा है कि डॉक्टर क्या रिकमेंड करते हैं. ठीक है, तो दीज होम रेमेडीज वी कैन यूज. ड्रॉ पिक्चर ऑफ अ हनी बी इन योर नोटबुक, color it and give it a name. Okay, no need to draw these things. ठीक है, now see, the lychee trees come to flower in February. I put all my 4 boxes near the lychee orchards. I got 12 kilogram of honey from each box. I sold this honey in the market. This was my first earning from my bees. Now I have 20 boxes. Now see, what is mean by orchards? Orchard का मीनिंग क्या है पता है आपको? ऑर्चर्ड मतलब ऐसा गार्डन जहां पर फ्रूट के ट्रीज होते हैं, उसे ऑर्चर्ड कहते हैं. अब यहाँ पर लीची ऑर्डर है, कहीं पर स्ट्रॉबेरी ऑर्चर्ड होता है, एप्पल ऑर्चर्ड होता है. ओके, ग्रेप वाइन्स के भी ऑर्चर्ड्स होते हैं, तो उसे गार्डन नहीं कहते, फ्रूट गार्डन नहीं कहते डियर, उसे ऑर्चर्ड कहते हैं. ठीक है, अब अनीता क्या बोल रही है कि उसने एक एक बॉक्स से 12 किलोग्राम हनी कलेक्ट किया और उसे मार्केट में सेल किया. कितने बॉक्स थे? हाउ मेनी बॉक्स शी हैज 4 बॉक्सेस. ओके, एंड फ्रॉम ईच बॉक्स शी हैज कलेक्टेड हाउ मच? 12 kilograms. So total, how many kilogram honey she has collected? Just do the multiplication. 12 into 4 and the total is 48. Huh. Now see what she is telling. This was the first earning from my bees. Now I have 20 boxes. Now Anita has 20 boxes. If cost of one box is rupees 2000, what will be the total cost of Anita's 20 boxes? Now, this is a maths topic. Now see, cost of one box is 2000 rupees and the cost of 20 boxes. Definitely it will इंक्रीज मनी, है ना, ये मनी को बढ़ाएगा क्योंकि 1 बॉक्स का अगर 2000 है तो 20 बॉक्सेस का कितना,
तो डेफिनेटली तो हमारा कॉमन सेंस बोलता है कि ज़्यादा होगा, और ज़्यादा होता है तो हम क्या करते हैं, मल्टीप्लीकेशन. तो सिंपल, 2000 multiplied by 20, and here is the cost 40,000 rupees. Okay, now see what Anita is telling. Every day I cycle to my college. My college is in the town, 5 kilometers away. When I go to college, my mother prepares the syrup for the bees. My father looks after the bees and takes the honey out of the boxes. Now, you also know a lot about Anita. See dear, अभी तक के अनीता के पेरेंट्स उसके एजुकेशन के भी अगेंस्ट में थे, और अब देखो वो उसको कितना हेल्प कर रहे हैं. इसका मतलब क्या है, whenever we are going to start anything new, but it should be very good, it should be very useful for not only we people, for the sake of others also. अगर ऐसा कोई हम काम करते हैं तो स्लोली ग्रेजुअली बाकी लोग भी हमको हेल्प करने के लिए रेडी होते हैं, और ये स्टार्ट हमारे फैमिली से ही होती है. ओके, नाउ सी, इसका बेस्ट एग्जांपल हमने अनीता की स्टोरी में देखा ही है कि कैसे पहले अनीता के पेरेंट्स उसके एजुकेशन के अगेंस्ट में थे, लेकिन ग्रेजुअली वो उसके बिजनेस में भी उसको हेल्प करने लगे, बी कीपिंग बिजनेस में, है ना. नाउ सी, Anita is known by everyone in all the villages nearby. She goes to all the village meetings and talks about how important it is for everyone to study. हाँ, अब अनीता सिर्फ यहीं तक नहीं रुकी. उसने ये देखा कि मैंने कितना स्ट्रगल कर कर एजुकेशन को गेन किया है, कितना स्ट्रगल कर रही हूँ मैं हर एक चीज को अचीव करने के लिए. तो मेरे पास में जो मेरी अपकमिंग जनरेशन है, मेरे विलेज की जो लेडीज है, गर्ल्स है, इन्होंने इन सारे प्रॉब्लम्स को फेस नहीं करना चाहिए. इसलिए उन्होंने क्या किया, वो विलेज टू विलेज जाकर वहाँ के लोगों को अलर्ट करती थी, वहाँ के हर एक मीटिंग्स अटेंड करते थे, और वो इम्पोर्टेंस बताते थे स्टडीज का, कि स्टडी कितनी इम्पोर्टेंट है सभी के लिए, नॉट ओनली फॉर गर्ल्स, फॉर द बॉयज ऑल्सो. समटाइम्स पीपल मेक fun of her, but Anita knows what she wants to do. She does exactly what she wants to. हाँ, कई बार ऐसा भी होता था, कुछ लोग उनकी सारी बातों को बहुत सिंसियरली लेते थे, फॉलो अप करते थे, बट कुछ लोग उनका मजाक उड़ाते थे. लेकिन अनीता रुकी नहीं, वहां पर उन्होंने स्टॉप नहीं किया. उन्होंने एग्जैक्टली वही किया जो उनको करना था, और वो कर कर बताया. उन्होंने ये नहीं देखा, ओ माय गॉड व्हाट अदर्स आर टेलिंग सो आई हैव टू स्टॉप. हम जनरली ऐसा होता है कि अगर हमारे पर कोई गलत कमेंट्स पास करता है, हमारे वर्क को कोई क्रिटिसाइज करता है, गलत तरीके से क्रिटिसाइज करता है, तो हम उस वर्क को स्टॉप कर देते, हम डीमोटिवेट होते हैं. लेकिन हमको डीमोटिवेट नहीं होना है. अगर हमने कोई बहुत बिग टास्क, गुड टास्क हमारे हाथ में लिया है, तो विदाउट थिंकिंग ऑफ अदर्स क्रिटिसिज्म we have to move forward, because we are doing a noble task, we are doing a good task. Now see, Anita wants to become a wholesaler so that she can help the villagers to get the right price of their honey. अब अनीता क्या करना चाहती है, अनीता हनी की एक होलसेलर बनना चाहती है, और इसके लिए वो चाहती है कि जितने भी होलसेलर्स है उन्होंने उस हनी का राइट प्राइस उनको देना चाहिए. ओके, फाइंड आउट. अनीता एंड अदर्स इन आवर विलेज गेट ₹35 फॉर 1 किलोग्राम ऑफ हनी. 1 किलोग्राम ऑफ हनी का अनीता या उनके विलेजर्स को कितना मिलता है, 35 rupees only. How much does 1 kilogram of honey cost in your town? Now see dear, अब हमारे तक आने, जो ये हनी हमारे पास आता है, तो हम इसको मार्केट से परचेस करते हैं. अलग अलग कंपनी का लोगो होता है इस पर, पतंजलि है, डाबर है, व्हाटएवर. तो ये कंपनी का लोगो ऐड कर कर, उसका पैकिंग वगैरह ऐड कर कर हमको ये नियर अबाउट
400 रुपीज kg, more than 400 भी हो सकता है, less than 400 भी हो सकता है. टेंटेटिव मैंने एक नंबर लिखा है यहाँ पर. ओके, तो हम तलक के तो ये 400 रुपीज तक होता है, लेकिन वो कितना कम रेट में सेल करते, ओनली 35 रुपीज kg. नाउ सी द नेक्स्ट. व्हाट आर द डिफरेंट कलर्स ऑफ हनी दैट यू हैव सीन? आपने कौन से कलर्स देखे हैं हनी के? द डिफरेंट कलर्स ऑफ हनी दैट आई हैव सीन आर brown and golden color. Is honey used in your home? What is it used for? क्या आपके घर में हनी का यूज होता है? क्या पर्पज से यूज होता है? Yes, honey is used in my house as sweetness in food. हाँ, फूड को स्वीट बनाने के लिए भी हम हनी का यूज कर सकते हैं. I eat honey with bread. हम ब्रेड के साथ भी हनी को खा सकते हैं. हनी इज यूज्ड व्हेन समवन हैज कफ और सोर थ्रोट. थ्रोट में अगर कुछ प्रॉब्लम है या हमको कफ है तो हम हनी का यूज कर सकते हैं. जिंजर के जूस में 2-3 ड्रॉप्स ऑफ जिंजर का यूज करते हैं उसमें, और हम उसको ऐड कर कर उसको लैप करते हैं. ठीक है, दिस इज फॉर द पर्पज ऑफ मेडिसिन. नाउ every beehive has one queen bee that lay eggs. अब ये बी हाइव में क्या होता है बेटा कि एक क्वीन बी होती है जो एग्स को ले करती है. There are only a few males in the hive. मेल मतलब कुछ मेल पर्सन, जेंट्स. ओके, बहुत फ्यू होते हैं ये. Most of the bees in the hive are worker bees. और इस हाइव में क्या होता है, मोस्ट ऑफ कौन सी बीज होती है? वर्कर बीज होती है जो डे एंड नाइट वर्क करती है. दीज बीज वर्क ऑल डे. हाँ, ये बीज जो वर्कर बीज है ये ऑल डे वर्क करती है. दे मेक द हाइव एंड ऑल्सो लुक आफ्टर द बेबी बीज. ये हाइव भी बनाती है और उनके जो बेबीज होते हैं उनको भी लुक आफ्टर करती है, उनका ख्याल रखती है. They fly around flowers in search of nectar. हमने जो वीडियो देखा था अबाउट हनी बीज का, उसमें सारी चीजें बहुत क्लियरली मैंने आपको बताई थी. ओके, सी हियर इज द इंफॉर्मेशन अगेन. हाँ, तो ये हनी बीज क्या करती है? सारा दिन फ्लावर्स में से नेक्टर कलेक्ट करती है, उसका जूस कलेक्ट करती है. दे कलेक्ट नेक्टर फ्रॉम फ्लावर्स फॉर हनी, और उससे वो हनी प्रोड्यूस करते हैं. When one bee finds flowers with nectar, it does a special kind of dance by which the other bees can know where the nectar is. हाँ, अब देखो कितनी अच्छी बात है ना कि अगर किसी एक आधे हनी को कोई पर्टिकुलर नेक्टर मिल गया, उन्होंने उस बी ने फाइंड आउट कर लिया, तो क्या करती है? एक पर्टिकुलर डांस करती है. तो वो डांस के थ्रू बाकी बीज को पता चलता है कि अरे यहाँ पर फ्लावर्स है और इसमें ये पर्टिकुलर नेक्टर है. ओके, द वर्कर बीज आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द हाइव. हाइव के लिए ये जो बी का हाइव है इसके लिए वर्कर बीज बहुत इंपॉर्टेंट है. विदाउट वर्कर बीज देयर वुड बी नीदर हाइव नॉर एनी नेक्टर कलेक्शन. वर्कर बी के बिना इस हाइव में न तो नेक्टर कलेक्ट होगा ना ही वो हाइव बनेगा. ओके, ऑल बीज इन द हाइव वुड गो हंग्री. जितनी भी बीज होती है ये सब बहुत हंग्री होती है. हाइव वुड गो हंग्री. द मेल बीज हैव नो स्पेशल रोल एज वर्कर्स. मेल बी का कोई स्पेशल रोल नहीं होता है जितना कि वर्कर बीज का होता है. ओके, विच आर सम अदर इंसेक्ट्स दैट लिव टुगेदर इन अ ग्रुप लाइक हनी बीज. हनी बीज के जैसे कौन से इंसेक्ट्स आपने ऐसे देखे हैं कि जो ग्रुप में होते हैं? ऐसे एंड्स होती है, टर्माइट्स और रैप्स होते हैं, लिव टुगेदर इन अ ग्रुप. एंड्स लिव and work together like honeybees. The queen ant lays the eggs.
The soldier ants look after and guards the ants' nest. Worker ants are always busy looking for food and bringing it to the nest. Termites and wasps also live like this. यहाँ पर ants, termites और wasps इन insects के बारे में भी क्लियर दिया हुआ है डियर. Have you seen where ants live? आपने देखा है कि ants कहाँ live करती है? Ants live usually under the ground or inside the walls with a small opening for entrance. अगर हमारे walls में छोटा सा भी कुछ होल है या कुछ छोटा सा क्रैक वगैरह है तो वहां पर भी ants लिव करती है, वहां पर भी ants रहती है. What kind of eatables attracts ant? List them. कौन से काइंड के eatables मतलब खाने की चीजें ants को अट्रैक्ट करती है? Ants are attracted to sugary items, grains, dead insects, etc. जो मरे हुए इंसेक्ट्स होते हैं, देखो अगर कोई इंसेक्ट मरा हुआ है, डेड है, तो वहां पर एंड्स कलेक्ट हो जाती है. ग्रेन्स के पास में भी कलेक्ट होती है और शुगरी आइटम्स तो यू नो वेल. ओके, लुक एट अ लाइन ऑफ एंड्स. व्हाट इज इट्स कलर? दे आर ऑफ ब्लैक, ब्राउन और रेड कलर. ओके, these are the color of ants. Have you been bitten by an ant? What was the ant like? Black or red, big or small? आपको कभी किसी ant ने बाइट किया है क्या? कौन से कलर की थी? बड़ी थी, छोटी थी, whatever. Yes, I have been bitten by an ant. It was a big red ant. हाँ, मुझे एक एंट ने बाइट किया था और वो बिग रेड कलर की थी. ठीक है. डू एंट्स एवर कम नियर यू एंड व्हेन? यस, दे डू कम नियर मी व्हेन शुगर, स्वीट्स और अदर एडिबल्स आर लाइंग अराउंड मी. इस तरह की कुछ चीजें में अगर मेरे आसपास गिरी हुई है तो एंट जरूर कलेक्ट होती है, आती है वहां पर. Look carefully at big or small ant. How many legs does an ant have? And now my dear, it's a very common sense कि big ant हो या small ant हो, legs तो सबके सेम हो गए ना, तो इनके 6 legs होते हैं. If you want to notice it, you can notice. Okay, now draw an ant in your notebook and color it. While eating peanuts, you probably throw away the shells. Why don't you try to make some insects by using the shells? Do not forget to color them. अब आप पीनट्स खाते हो, ठीक है, तो उसके शेल्स क्या करते हो? आप थ्रो करते हो या वहां फेंक देते हो. तो क्यों ना हम इससे एक फनी एक्टिविटी करें. आप उन शेल्स को कलर करो और ट्राई करो इनसे इंसेक्ट्स बनाने का. Definitely you will enjoy. Color it. Okay, and thus we have completed our chapter number 5, Anita and the honeybees. On Monday we will meet with some new ideas or with a new chapter. Till then, bye bye. Have a nice day. Children, whatever the question answers we have discussed in the video, all you have to complete. All you have to write in your EVS notebook by using ink pen only. Okay? Bye.